Started urea, yeah, sorry, fertilizer industry, and एक brief सा intro करते हुए कि what are fertilizers, क्या होते हैं, what is their need as per the demand, yeah, as per the increase in growth rate, increase in population numbers. We need to have fertilizer. At the same time, cultivable or fertile land area is reducing, so we need to increase the production of the food. That is why we use fertilizers. Based on plant, there are two types of nutrients which plants require: macro and micro. Macronutrients are those which plant consumes in larger amount, while micronutrients are those which plant consumes in smaller amounts. Then there are two types: natural and synthetic. Natural fertilizers are those which are available in nature, and animal and plant waste basically are used as natural fertilizer. As they are available naturally, so we cannot control the composition of different nutrients present in natural fertilizer. In case of synthetic fertilizer, because we will be synthesizing these fertilizers, so we can control the composition of various elements present in the fertilizer. Three basic nutrients. Macronutrients are nitrogen, phosphorus, and potassium. Nitrogen basically control the overall, you can say, the process of the plant growth. It has an overall effect. Phosphorus basically affect the metabolism of the plant, while potassium try to control or put check on the cellular organization. It will try to mediate the temperature of the plant during its various activities, and it will try to resist the fungal and bacterial attacks as well. So urea is the most commonly used nitrogen fertilizer in the, can say, in the fertilizer industry. And as Pakistan is also an agricultural country, and a major portion of our economy depends on this uh, agriculture. So the major industry, or the major portion of the industry in Pakistan, is the fertilizer producers. So most of the job placement of process engineers are also in fertilizer industry, and urea being rich in nitrogen is the only fertilizer which is produced in larger amount in Pakistan especially. So urea basically is a white crystalline solid, and most widely used fertilizer as well. It can be formed in the form of prilt and granules. Prilt are like very small size pellets, like Panadol or Dispirine. ठीक है? This size of a pellet, or this shape and size of a solid compound, it is termed as prilt. And granules are somewhat larger, spherical particles of the same fertilizer, like like soap bar, और जिसमें गुड़ होता है. So that shape, that soap shape or good shape, these are granules, while platelets are very small size pellets, like Dispirine or Panadol pellet. So either in prilt form or granule form, urea is a free flowing solid. It can be readily dissolved in water, and it contains up to 46% nitrogen. This is the maximum amount of nitrogen in any nitrogen based fertilizer. Because of its high solubility in water, we can use it in the form of solution by spraying it onto the plants, and this application is known as foliar application. It is not explosive by nature, so we can transport it, we can store it very easily. There is no issues or problems regarding its handling. Uh, the major use of urea is as a fertilizer.
It can be used as a food supplement as it contains higher content of nitrogen. It can be used in the making of utensils. Melamine के नाम आपने सुने होंगे. And it can be used as an it is used as an ingredient in tooth whitening products and in dish soaps for whitening purposes. And it is also used in the manufacturing of some plastic compounds. So there are various processes for the manufacturing of urea: once through process, partial recycle process, and total recycle process. So initially the process used was once through. Then with passage of time, as the uh, scientific research improved, the technology of the process improved, the original process was improved to partial recycle process. And again, with the improvement in scientific knowledge, research, and technology, uh, uh, the most improved version of urea manufacturing is total recycle process. क्योंकि पहले वंस थ्रू था, इसको इम्प्रूव किया गया तो वो पार्शियल बना, फिर इसको इम्प्रूव किया गया तो वो टोटल रिसाइकल प्रोसेस बना. So now this total recycle process is being employed in various urea manufacturing plant across the world. Main reactions, the main reactants are ammonia and carbon dioxide, and initially they combine to form an intermediate compound. This is an intermediate compound which is termed as ammonium carbamate. ठीक है? This reaction is exothermic by nature, and this reaction chemistry requires pressure of 14 megapascal and temperature of 180 degrees C. Then in the next step, ammonium carbamate decomposes into urea. This is urea plus water, and this reaction is endothermic by nature. So this is the whole chemistry required for urea synthesis. Again, in the first step, ammonia and carbon dioxide will react to form ammonium carbamate, an intermediate compound. This reaction is exothermic in nature. Then this ammonium carbamate will decompose into urea and water by absorbing heat, as this is endothermic reaction. Temperature is 180 degrees C and pressure is 14 megapascal required for this reaction setup. There is a side reaction, in fact, an undesired reaction, in which urea can decompose into undesired product, which is this one, and this product is termed as biuret. Okay? So this is biuret, and it is an undesired product. So why we do not want biuret? Because the if the fertilizer, that is urea, if it contains even little amount of biuret, then this biuret adversely affect the plant growth. We are using urea in order to enhance the plant growth. But if this urea contains this byproduct biuret, it will adversely affect the plant growth. Instead of increasing the growth, it will start decreasing the growth rate of the plant. So that is why we do not want this biuret in our urea, and we try to keep it as much low as we can in the final urea product. And one way to avoid its synthesis is to keep ammonia gas in excess. And second way is by controlling the reaction conditions well. अगर हम ये दोनों काम कर लें, यानी कि हम अमोनिया को एक्सेस में रखें और टेम्परेचर प्रेशर को सिस्टम के रिएक्टर को कंट्रोल करें, तो वी कैन डिक्रीज दी amount of biuret in urea, and by doing so the plant growth will not be affected adversely. So this is the total chemistry. Any question regarding this chemistry? सर एक आपने बताया अमोनिया की एक्सेस रखनी है और दूसरा क्या बताया? आपने इन रिएक्शन कंडीशंस को अच्छे से कंट्रोल करना है. ओके सर.
Okay, any other question? सर ये बायोयूरेट को थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दें काइंडली। Okay. So again, ये जो formula है, it is representing ammonium carbamate intermediate compound. This formula is urea, final product, and this formula is biuret. And biuret is formed by the combining of two urea molecules. ये यूरिया है, इसके दो molecules combine होते हैं तो we get biuret. अभी जो biuret है, ये अगर यूरिया में हो तो ये प्लांट ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को इन्हांस करने की बजाय, इम्प्रूव करने की बजाय डैमेज करना शुरू कर देगा। ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इमेच्योर होगी, इस तरह के मामला होंगे। तो इस चीज के मद्देनजर रखते हुए हम बाई यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, इसकी अमाउंट को। और उस चीज को करने के लिए कि इसकी अमाउंट मिनिमम रहे, हम अमोनिया को एक्सेस कंपाउंड बनाते हैं और साथ में इन रिएक्शन कंडीशंस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन? चलें, मूविंग फॉरवर्ड। So, what is one's through process? Actually, as this was the base process, and the scientific knowledge or the technology was not up to the you can say up to the mark, and as a result, what we have in one's through process, that a lot of unreacted reactants, that is ammonia and carbon dioxide, they were wasted. And as we have spent money in the purchase of these reactants, and if we waste them, that means we are wasting our money as well. So since क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, साइंटिफिक नॉलेज इतना नहीं था, तो रिएक्शंस चूंकि रिवर्सिबल हैं, इट मींस आवर प्रोडक्ट विल कंटेन अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। सो चूंकि प्रोडक्ट में अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स होंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए वंस थ्रू प्रोसेस में ये जब हम अपने प्रोडक्ट को अनरिएक्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट कर लेते थे, तो इन रिएक्टेंट्स को हम वेस्ट कर देते थे। सो एज अ रिजल्ट वी वर वेस्टिंग दी मनी एज वेल। तो इस चीज को इम्प्रूव किया गया इस तरह से, that once through process was transferred or in partial recycle process. And what was happening in partial recycle process, that instead of wasting all the amount of unreacted ammonia and carbon dioxide, we start recycling the some amount of unreacted ammonia and carbon dioxide back into the urea reactor. सो पार्शियल रिसाइकल वन थ्रू से क्यों थोड़ा इम्प्रूव था, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हुई। सो एज ए रिजल्ट हम सारी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं करते थे, इसमें से कुछ अमाउंट हम रिसाइकल कर जाते थे, जिससे जो ओरिजिनली रिएक्टेंट या मनी लॉस था वो कम हो गया। देन अगेन विद पैसेज ऑफ टाइम we had total recycle process, and in this process all of the unreacted ammonia and carbon dioxide, all the unreacted ammonia carbon dioxide, they were recycled back into the ammonia reactor। इसमें हम सारा के सारा unreacted amount जो है reactants की उसको recycle कर देते, क्योंकि we are consuming all the amount of the reactants which we purchase, so it means the loss of money was minimum in total recycle process। So any question about the comparison of the processes? नो सर।
Okay, so now total recycle process is being used in the world, and it has two categories: hot gas mixture recycle and semi-carbon urea stripping process. The semi-carbon process is the newest one and most commonly used, and hot gas mixture recycle is, I guess there is no plant based on this process scheme. So what was the drawback of hot mixture recycle process? So just keep one thing in mind, that urea synthesis is a process which takes place at a very high pressure. So it means, as ammonia and carbon dioxide, we have to compress or pump our reactants at this much pressure. We have to add we have to add this much amount of pressure energy into the reactants, because only then they can react. So when we compress a gas or when we pump a liquid to such a high pressure, it involves a lot of cost. ठीक है, जब हम किसी भी रिएक्टेंट को इतना ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो वो जिस मशीन से हम उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जिस इक्विपमेंट से, तो इसका मतलब है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही है दैट लाइक a 800 cc car will consume lesser amount of fuel, and a 3000 cc car will use a higher amount of fuel, क्योंकि वर्क आउटपुट बढ़ जाता है. सो इन केस ऑफ हॉट, सर यस, सर जैसा कि आपने अभी कहा, मतलब इस रिएक्शन में काफ़ी हाई प्रेशर चाहिए होता है। रिएक्टेंट्स को हम कंप्रेस करते हैं। सर उस कंप्रेशन से जो हीट जनरेट होती है वही हम क्या यूज़ करते हैं या वो अलग से प्रोवाइड करते हैं? नो नो, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है ना, तो एक सिंगल कंप्रेसर में ये प्रेशर अचीव नहीं हो पाता. So we will have a number of compressors connected in series. अब जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, you will increase its pressure, its temperature will also increase. ये नेचुरल है. But the job of the compressor is to only increase the pressure of the gas and not the temperature. कंप्रेसर का काम है उसे प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर नहीं. ये और बात है कि गैसेस के केस में ये नेचुरली हो जाता है. तो फिर जी क्या सर। होता है कि जितने भी हमने कंप्रेसर्स लगाए होते हैं ना, हर दो कंप्रेसर के दरमियान एक कूलर होता है. तो वो पहले एक कंप्रेसर से गैस पास हुई, एक खास प्रेशर तक गई, और उस प्रेशर पे जब पहुंची तो उसका टेम्परेचर बढ़ा. फिर हमने इस प्रेशराइज्ड गैस को कूलर में से पास किया और उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया. फिर उसको दूसरे कंप्रेसर में भेजा जिसने और प्रेशर इंक्रीज किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा. फिर उसको एक कूलर में से पास किया और उसके टेम्परेचर को ड्रॉप किया, और अगर तीसरे कंप्रेसर की जरूरत हो तो तीसरे में, अदरवाइज इसको डायरेक्ट रिएक्टर में भेज दिया. So in this way we try to control the increase in temperature of a gas during compression. सर तो कूलिंग से उस गैस का प्रेशर ड्रॉप नहीं हो जाता होगा? होता है, बट जितने हमने कंप्रेसर्स लगाए होते हैं ना, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड और सिमुलेशन से वेरीफाइड चीजें होती हैं, तो हम उस वेरिफिकेशन में ये इंश्योर करते हैं कि जब लास्ट कंप्रेसर से हम गैस लें तो वो रिक्वायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे. ओके सर। Oh, in case of hot mixture recycle process, uh, when we take out the product from the reactor and we send it towards the separation section, because we want to separate the main product urea from unreacted reactants. So that separation involves a decrease in pressure. Okay? The separation of products from the reactants, it requires a decrease in pressure. That means when we will separate out the reactant gases, then we have to recompress them to the reaction temperature pressure. So this recompression cost is very huge. It is very expensive, and because of this recompression, this process is not favorable anymore. While in case of semi-carbon process, we compress the gases only once, and there is no need of recompression.
So that is why semicarbon process is most favorable nowadays. So we will look or we will study the semicarbon urea stripping process, and these are the various steps involved in urea synthesis using semicarbon process. Uh, Reaction of ammonia and carbon dioxide. Then we will strip carbon dioxide through the product mixture. Then there is a partial condensation of ammonia and carbon dioxide. Then we will have purification section in the form of rectification column and evaporation. And then we will have drilling or granulation section for urea. So this is the सर ये हॉट गैस मिक्सचर रिसाइकल काइंडली एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें. so in case of hot mixture recycle process, after the reaction, when we separate the unreacted reactants, that is ammonia and carbon dioxide from urea. So for this separation, we have to decrease the pressure of the stream which is coming out of the reactor. क्योंकि इनको separate करना है, तो रिएक्टर से फिर जो स्टीम आती है उसका हमें प्रेशर डिक्रीज करना पड़ता है. जब हम उसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं और अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स को सेपरेट करते हैं, अब इन अनरिएक्टेड रिएक्टर्स को सेपरेट करने के बाद हमने दोबारा से रिएक्टर में भेजना है. अब रिएक्टर का प्रेशर हाई है क्योंकि रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, और सेपरेशन के बाद इन अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स का प्रेशर लो हो चुका है, तो हमें इन्हें दोबारा से कंप्रेस करना पड़ता है. यानी कि एक स्टेप और ऐड हो जाता है प्रोसेस में, विच इज रिकम्प्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स. तो उस रिकम्प्रेशन की वजह से प्रोसेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसलिए ये हॉट मिक्सचर रिसाइकल प्रोसेस अब यूज़ नहीं होता, और स्टेमी कार्बन ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें हमें एक ही दफ़ा रिएक्टेंट्स को कंप्रेस करना है. उसके बाद प्रोसेस डिज़ाइन इस तरह से है कि रिकम्प्रेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी. Yes, sir. So these are the various steps involved in semicarbon urea stripping process, and this is the flow sheet. So just assume or visualize that ammonia and carbon dioxide at time t equal to 0 when we are about to start the process. This ammonia and carbon dioxide, it goes directly into this reactor at the required temperature and pressure. ठीक है. जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करने लगे, क्योंकि ये फ्लो शीट जो है ना, इट इज फॉर स्टेडी स्टेट प्रोसेस, जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है रनिंग में. मगर जब हमने स्टार्ट करना है, तो चूंकि स्टार्ट रिएक्टर से होना है, प्रोडक्ट बनेगा तो ये आगे से प्रेशर वाले सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तो हम रिएक्टेंट्स को डायरेक्टली रिएक्टर में भेजेंगे. ठीक है, एट डिजायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. So as ammonia is liquid, so we will use a pump for the required pressure value. CO2 is a gas, then we will use a compressor for desired pressure value. So in the reactor, this chemistry will be followed. That initially ammonia will react with carbon dioxide to form ammonium carbamate, an intermediate compound. This reaction is exothermic. Then this intermediate compound, ammonium carbamate, it will decompose into urea and water, and this reaction is endothermic. The temperature required is 180 degrees C for this chemistry, and pressure is 14 megapascal. And the reactions are reversible as well. That means the stream which is leaving the reactor, this stream, the product stream which is leaving this reactor, it will have unreacted reactants in the form of ammonia, carbon dioxide. It will have intermediate compound which is carbamate, and it may have a little amount of urea as well. ठीक है. ये जो प्रोडक्ट स्ट्रीम रिएक्टर से निकल रही है, चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसमें रिएक्टेंट्स भी होंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बामेट भी होगा, और कुछ यूरिया भी हो सकता है. Then this product stream, it is sent into a stripper. This is the stripper. So in this stripper, firstly we provide steam. ठीक है.
Why we are providing steam? Steam means we are giving heat to the system. Why we are giving heat to the system? Because of this second reaction. It is endothermic in nature. So that means if we want to convert carbamate into urea, we need to give heat or energy to the carbamate so that it can decompose into urea and water. The reaction nature is endothermic. So this reaction will require energy or heat. So in order to convert carbamate into urea, because this conversion is endothermic, we provide steam, heat through stream, and after giving its energy to the product stream, the steam leaves the stripper as condensate. ठीक है, स्टीम दे रहे हैं क्योंकि कार्बामेट की यूरिया में जो कन्वर्जन है वो एंडोथर्मिक है. सो इस रिएक्शन का मतलब हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी हम स्टीम की फॉर्म में देते हैं. सेकेंडली, वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड in this stripper after compressing it to the reaction pressure, which is 14 megapascal. And then after compressing carbon dioxide, we bubble it out through this product mixture. And this bubbling of carbon dioxide through product mixture is also known as stripping of carbon dioxide through this product mixture. तो भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करेंगे रिएक्शन टेम्परेचर पे जो कि रिएक्शन प्रेशर पे जो कि 14 मेगापास्कल है, और फिर इसको इस प्रोडक्ट मिक्सचर में से जो रिएक्टर से इस स्ट्रिपर में ऐड हो रहा है उसमें से बबल आउट करेंगे, उसमें से स्ट्रिप करेंगे. तो जब एक गैस इस मिक्सचर में से स्ट्रिप आउट होगी तो इस प्रोडक्ट मिक्सचर में जो कि स्ट्रिपर में ऐड हो रहा है जो अनरिएक्टेड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, ये फ्रेशली एंटरिंग प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ये उन अनरिएक्टेड गैसेस को अपने अंदर इंट्रैप करेगी और इस लिक्विड मिक्सचर में से लेके बाहर आ जाएगी, एंड इट विल लीव द स्ट्रिपर फ्रॉम द टॉप साइड, एंड फ्रॉम देयर इट विल एंटर इनटू ए कंडेंसर. ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंप्रेस करेंगे टू द रिएक्शन प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर स्ट्रिपर में ऐड होगी, और स्ट्रिपर के अंदर ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर एंटर हो रहा है रिएक्टर से उसमें से गुजरेगी, उसमें से बबल आउट होगी, उसमें से स्ट्रिप होगी, और इस मिक्सचर के अंदर जो अनरिएक्टेड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उनको अपने अंदर इंट्रैप करेगी, and it will leave the stripper from the top, from where it will enter into this high pressure condenser. स्ट्रिपर में स्टीम ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो कार्बामेट की कन्वर्जन है इनटू यूरिया, it is an endothermic process, so that means we have to give energy to this system, to this chemical, so that it can decompose into urea and water. So steam हम इसलिए एंटर कर रहे हैं स्ट्रिपर में ताकि ये हीट जो है वो कार्बामेट में जाए और वो डीकम्पोज हो जाए हमारे मेन प्रोडक्ट में, विच इज यूरिया. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रिपर विल वर्क. जी सर, इसके अंदर जो रिएक्टर स्टीम से आ रही है वहां पे अमोनियम कार्बामेट भी मौजूद है? जी मेजरली अमोनियम कार्बामेट ही होगा और यूरिया इतना नहीं होगा. यूरिया मेन अमाउंट में हमें इस स्ट्रिपर में मिलेगा क्योंकि कार्बामेट की जो कन्वर्जन है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, कार्बामेट की कन्वर्जन यूरिया में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इसका मतलब है जब तक कार्बामेट को हीट नहीं मिलेगी ना तब तक वो यूरिया में डीकम्पोज नहीं होगा. तो इसलिए हम इसमें स्टीम देते हैं. सर जी पूछिए, मैं सुन रहा हूँ. सर, जो कार्बामेट का रिएक्शन है वो भी तो एक्सोथर्मिक है, फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी. दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा. सर, जो पहला वाला प्रोसेस है वो भी एक्सोथर्मिक है, तो जब हम हीट दे रहे हैं अमोनियम कार्बामेट को तो ये भी तो हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएं. ये दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल ही हैं भाई. ठीक है. सो कभी भी रिएक्टेंट्स 100% प्रोडक्ट में चूंकि रिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में रहते हैं और उन्हीं को हम सेपरेट करते हैं.
और दूसरा जो कन्वर्जन मेन है कार्बामेट की इनटू यूरिया, वो ये स्ट्रिपर में होती है, रिएक्टर में बहुत कम होती है। सर जो जी स्ट्रिपर के अंत से जो स्ट्रीम निकल रही है उसके अंदर उसमें हमारे पास कौन कौन उसकी कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास? ओके, ये जो स्ट्रिपर से अब प्रोडक्ट स्ट्रीम निकलेगी इसमें मेनली यूरिया होगा, ठीक है, और कुछ इंट्रैप्ड अमाउंट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी हो सकती है, और वाटर होगा, क्योंकि जब कार्बामेट यूरिया में कन्वर्ट होता है तो साथ में वाटर भी बनता है। सो इसमें मेनली यूरिया, वाटर और कुछ कुछ इंट्रैप्ड अमाउंट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। सर जी सर ये जो हमारे पास टेम्परेचर है 180 डिग्री सी, ये हमारे पास दोनों प्रोसेसेस के लिए, दोनों रिएक्शंस के लिए 180 चाहिए हमें। जी जी। तो सर जब रिएक्टर के अंदर से टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आपको मैंने बोला था ना, वो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, कि आपने बाईयूरेट की मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम करना है, तो उसके लिए हमें रिएक्शन की कंडीशंस को अच्छे से अच्छा कंट्रोल करना है। तो ऑब्वियसली जब इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है 180 डिग्री सी, तो हम रिएक्टर के टेम्परेचर को 180 डिग्री सी पे रखेंगे। सर तो एक्सेस हीट कहाँ पे जाएगी फिर? यहाँ पे तो हमने हीट एक्सचेंजर भी नहीं लगाया कोई। वो इस कंडेंसर में जाएगी जो अभी कूलिंग। एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया सर। ठीक है, इसमें हम और बॉयलर, सर इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ये एक्स्ट्रा हीट इस मिक्सचर में से रिमूव करेगा, ये जो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर इसमें ऐड हो रहा है। तो वाटर जब रिक्वायर्ड हीट रिमूव करेगा खुद स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड डिजायर्ड टेम्परेचर पे इस स्टीम से रिएक्टर में एंटर हो जाएगी। वो पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। और सर स्ट्रिपर में से जो हमारे पास हाई प्रेशर कंडेंसर के अंदर स्टीम जा रही है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें मेनली अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है जी? जी सर। Okay. So, from stripper, the pressurized carbon dioxide and ammonia gas, they go into this high pressure condenser where we will reduce its temperature to the reaction condition. And in order to do so, we add boiler feed water. The gases exchange their heat with the boiler feed water. As a result, boiler feed water is converted into steam while the temperature of the gases is reduced. Then the cooled gases at the required condition, reaction temperature, they are introduced back into the reactor. Again, the reaction will take place. The product stream will leave the reactor through this line. We will perform stripping with the help of carbon dioxide. Carbamate will be converted into urea with the help of the steam. Urea will leave the stripper from the bottom. Unreacted gases will leave the stripper from the top. We will reduce its temperature to the desired value, and then this cool gas is again introduced into the reactor. So this is how this whole cycle will work. And then in order to add ammonia in the process, so this is the line of the ammonia. It is in liquid state, so we will pump it to the reactor pressure, which is 14 megapascal, and then we will pass it through an ejector. अगर आपको याद हो, मैंने जब पहले लेक्चर में पंप्स पढ़ाए थे तो उसमें इजेक्टर एक्सप्लेन किया था. So some gases will leave the reactor from the top, and majorly this gas will be ammonia, because we have kept ammonia in the excess amount and carbon dioxide is in limiting amount. So we will pass the gases which are leaving the reactor from the top through a cooler. As a result, ammonia will be condensed into a liquid state. We will take this liquid ammonia back into the process, while the inert gases which were not condensed through this cooler will leave the reactor, and they will go directly into the environment.
So this captured liquid ammonia, it will be mixed in this pressurized liquid ammonia. ठीक है? So ejector or jet pump, basically this pump helps uh, by mixing a stream which has a low momentum into a stream which has a high momentum. ठीक है? So ejector basically क्या करेगा, एक लो एनर्जी की स्ट्रीम, क्योंकि जब हमने इसे कूल कर दिया तो इसका प्रेशर कम हो गया ना, बट हमने इसको रीयूज भी करना है, रीयूज करने के लिए इसे दोबारा से रिएक्टर में मिक्स करना है. सो टू डू सो वी यूज एन इजेक्टर. इजेक्टर क्या करता है कि एक लो प्रेशर की स्ट्रीम को, एक लो मोमेंटम की स्ट्रीम को एक हाई प्रेशर की स्ट्रीम के अंदर मिक्स करने में हेल्प करता है. And then this stream with high pressure or high momentum, it will take this low pressure stream, and as a result this low pressure stream will move with the high pressure stream, and this ammonia stream then will go into this condenser. जी, अब ये रिएक्टर, स्ट्रिपर और कंडेंसर, ये कॉम्बिनेशन क्लियर है? सर मिक्स हो गया. क्या मिक्स हो गया है? सर काइंडली आप अमोनिया टाइम्स. जी सर. ओके, तो इस रिएक्टर जी सर ये जो यूरिया हमने हाई प्रेशर कंडेंसर में इंट्रोड्यूस कराया सर, ये अपना बायूरेट के को कम करने के लिए कराया है. में गैसेस एंड रिएक्टेड. सर आपकी आवाज बार बार कट रही है. कंडेंसर में गैसेस हैं, यूरिया नहीं है. यूरिया स्ट्रिपर के बॉटल से निकला है. ओके सर. तो चूंकि अमोनिया कंज्यूम हो रही है तो उसकी फ्रेश अमाउंट हमें साथ साथ ऐड करनी है ना प्लांट में, अपने रिएक्टर में. सो उसके लिए दिस इज द लाइन फॉर फ्रेश अमोनिया. अच्छा, अब रिएक्टर में कुछ गैसेस लीव करेंगी टॉप से, जो सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो हम उन गैसेस को एज इट इज एनवायरनमेंट में नहीं भेज सकते, इसलिए उन गैसेस को हम एक कूलर में से गुजारते हैं, और इस कूलर में जो अमोनिया होती है वो मेजरली कंडेंस या कूल डाउन हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है. तो इस लिक्विड अमोनिया को हम रीयूज करते हैं, और जब कूल करते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है. हमने इसको यूज भी करना है और इसका प्रेशर भी कम हो गया है. हमने रिकम्प्रेस भी नहीं करना, यहाँ पे कंप्रेसर नहीं लगाना, क्योंकि फिर प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो हम क्या करते हैं, फिर इजेक्टर को यूज करते हैं. इजेक्टर क्या करता है, ये एक लो प्रेशर की स्ट्रीम को एक हाई प्रेशर की स्ट्रीम में मिक्स कर देता है. अगर आप वैसे ही एक लो प्रेशर की स्ट्रीम को हाई प्रेशर स्ट्रीम में मिक्स करेंगे तो वो मिक्सिंग कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस स्ट्रीम का मोमेंटम हाई होगा ना, प्रेशर हाई होगा, वो लो एनर्जी वाली स्ट्रीम को एंटर ही नहीं होने देगा. ठीक है? सो इजेक्टर क्या करता है, वो एक हाई प्रेशर स्ट्रीम को लो प्रेशर स्ट्रीम में मिक्स करने की कोशिश करता है. बर्नौलीज की वो डायग्राम अगर आपको याद है ना, इक्वेशन डेरिवेशन की, कि कन्वर्जेंस, फिर थ्रॉट और फिर डाइवर्जेंस. पहले प्रेशर डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट एरिया आता है, फिर एरिया में इंक्रीज, एरिया वेरी करते हैं और डाइवर्जेंस की तरफ लेके जाते हैं, प्रेशर रिकवर होता है. तो ये उस तरह से काम करता है इजेक्टर, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, थ्रॉट की प्रिंसिपल को यूज करते हुए. हम इस फ्रेश अमोनिया को रिक्वायर्ड प्रेशर देते हैं इस पंप से जो रिक्वायर है, इसको इस इजेक्टर में भेज देते हैं, और दूसरी तरफ से ये लो प्रेशर की अमोनिया जो हमने रिक्लेम की है फ्रॉम द गैसेस लीविंग द रिएक्टर, उसको इस इजेक्टर में ऐड करते हैं. देन दिस हाई प्रेशर अमोनिया will take this low pressure ammonia with it, and they will go into the stripper, where they will mix with this gaseous stream which is coming from the stripper. तो ये दोनों स्ट्रीम जो हैं वो फिर इस कंडेंसर में मिक्स होती हैं, जहाँ पे हम वाटर ऐड करते हैं और इस स्ट्रीम के प्रेशर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, और वाटर हीट लेने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. रिक्वायर्ड रिएक्शन टेम्परेचर पे गैसेस जो है वो दोबारा से रिएक्टर में चली जाती हैं.
सर ये जो रिएक्टर में लिक्विड अमोनिया को हम पंप कर रहे हैं उसकी लाइन कौन सी है? रिएक्टर में लिक्विड अमोनिया नहीं जा रहा, लिक्विड अमोनिया इजेक्टर के थ्रू कंडेंसर में जा रहा है, जहाँ पे वो इस स्टीम के साथ मिक्स होता है, कूल डाउन होता है, और फिर इस स्ट्रीम के थ्रू वो रिएक्टर में जाता है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन जी यहाँ तक? सर आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी, तो मैंने पूछना था कि ये रिएक्टर में सर क्या क्या हो रहा है? रिएक्टर में वही रिएक्शंस हो रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए हैं। केमिस्ट्री जो शुरू में आपको बताई है, जी सर, ओके। ये दो रिएक्शंस, ये रिजाइड है और ये वाला रिएक्शन अनडिजाइड है, बायूरेट वाला। सर जी, सर ये स्ट्रिपर के ऊपर जो कंडेंसेट का ऑप्शन है ये क्या शो कर रहा है? जब स्टीम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है तो उसको उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे ही उसकी एनर्जी कम होती है तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसका कुछ पार्ट। तो उस फिजिकल चीज को हम कंडेंसेट कहते हैं। जब स्टीम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद कुछ वेपर कुछ लिक्विड स्टेट में वापस बाहर आती है सिस्टम से, सो इस कुछ वेपर कुछ लिक्विड को कंडेंसेट कहते ओके सर। हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर मैंने एक बात कंफर्म करनी थी कि जब हमारे पास एचपी हाई प्रेशर कंडेंसर के से जो हमारे पास लिक्विड अमोनिया लो टेम्परेचर होकर आती है, उसके साथ हमारे पास जो हमारे पास ये स्ट्रिपर में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी आ रही है। वो जब रिएक्टर में जाके रिएक्ट करते हैं वो वापस फिर उसी स्ट्रीम से आते हैं जिसमें ये स्ट्रिपर पे जा रहे हैं। जी जी, अनरिएक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इस स्ट्रीम से रिएक्टर से बाहर आएगा, स्ट्रिपर में जाएगा, यूरिया सेपरेट हो जाएगा, अनरिएक्टेड अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड इस स्ट्रीम से कंडेंसर में चला जाएगा, और जो फ्रेश अमोनिया है वो इस लाइन से इजेक्टर से गुजरती हुई फिर कंडेंसर में आएगी। और जो फ्रेश जो ये दोनों चीजें कंडेंसर में मिक्स होंगी, टेम्परेचर रिएक्शन टेम्परेचर तक आएगा और फिर इस स्ट्रीम से ये रिएक्टर में एंटर हो जाएगी। और फिर यहाँ से फिर से स्ट्रिपर में जाएंगे। हाँ जी, ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि रिएक्टर, स्ट्रिपर और कंडेंसर ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड होंगे और कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहेंगे क्योंकि स्ट्रीम्स इनके दरमियान घूमती रहेंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जैसे स्ट्रीम की तो जाहिर सी बात है कि हाई एनर्जी होती है, तो मतलब प्रेशर भी ज़्यादा होता होगा, लेकिन जब हम लिक्विड NH3 को हम इतने प्रेशर से इजेक्टर से करवाते हैं, सर वो स्टीम वाला ऊपर जाकर वो उसके प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता, मतलब बढ़ा नहीं देता होगा क्या? ओके, ये जो इक्विपमेंट है ना, जैसे कंडेंसर है, इसकी दो फ्लो एरियाज है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी कि जब आप ये स्ट्रीम्स एंटर होती हैं, अब आप देखो इसकी इसकी फिजिकली शेप पे गौर करो। एक ये हेड सा है, इसी तरह ये बॉटम वाली साइड पे एक एंड है, और बीच में ये ट्यूब्स हैं जो वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, तो जो फ्रेश अमोनिया इस लाइन से आ रही है और जो स्ट्रिपर से कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया आ रही है, वो दोनों इस हेड में जा रहे हैं, ये यहाँ पे मिक्स होते हैं। और जो वाटर है ना वो इन ट्यूब्स में जाता है और स्टीम बन के इन्हीं ट्यूब से बाहर आता है। तो फिजिकली ना ये दोनों डिफरेंट सेक्शन है एक दूसरे से, और इनके दरमियान एक मेटेलिक सरफेस है जो कि हीट कंडक्टिव सरफेस होती है, जिसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज हो सकती है और टेम्परेचर अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीजें नहीं मिक्स हो रही क्योंकि ये दोनों इक्विपमेंट के डिफरेंट सेक्शंस में हैं। हाँ, ये दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं
क्योंकि ये दोनों एक ही सेक्शन में एंटर हो रही है और ये वाली चीज दूसरे सेक्शन में। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ये और कोई क्वेश्चन? इफ नॉट तो सी आर काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें।